Hello students, today's topic is expenditure method of measuring national income in India. Let's start with its meaning. The expenditure method of measuring national income is also called income disposal method or consumption and investment method. It is a method which measures the final expenditure on gross domestic product at market price during an accounting year. This total final expenditure is equal to the gross domestic product at market price. Let's start with its steps. Step 1. Identification of economic units which incur final expenditure. तो पहला स्टेप है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया में, अगर मैं इंडिया को डोमेस्टिक कंट्री एज्यूम कर रहा हूँ, इंडिया में जितनी भी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर बियर कर रही हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर कर रही हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड वन गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो स्टेप वन आपका क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर कर रही हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर बियर कर रही हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, government sector and rest of the world sector. This is step 1. Now let's come on to step 2. Then we have to classify the final expenditure into the following components. अब जैसे कि step 1 में आपने देखा कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, दे आर इंकरिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर। बट अब ये किस टाइप का फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर कर रही हैं, हमें ये देखना है स्टेप 2 में। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा? कंजम्पशन। जो हम नॉर्मल जो हाउस होल्ड्स होते हैं, हम क्या करेंगे? कंजम्पशन। तो इसे लिखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी। जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, जो फर्म्स होती हैं, वो अपने बिजनेस में करती हैं इन्वेस्ट, तो वो करेंगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय आई। जो गवर्नमेंट है, मतलब जो थर्ड वन था गवर्नमेंट सेक्टर, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय जी। और जो लास्ट सेक्टर हमने पढ़ा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, उसके लिए हम लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट्स डिनोटेड बाय एनएक्स। ठीक है, क्लियर? household sector consumption expenditure, production sector investment expenditure, government sector government final consumption expenditure and rest of the world sector के लिए net exports। net exports होता है आपका exports minus imports। now let's come on to step 3। अब जो हमने अभी स्टेप 2 में जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स देखे, उन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वी विल सम अप all the components of final expenditure in order to obtain GDP at MP। तो इक्वेशन क्या बनेगी? GDP at MP, which is gross domestic product at market price, is equal to consumption plus investment plus government expenditure plus net exports। So I hope third step is also clear कि जितने भी components थे final expenditure के, we will add them in order to obtain GDP at MP। Now step 4, now we need to find out the domestic income with the help of GDP at MP। clear? So here we have, this is net and this is gross। okay, this is net domestic product at factor cost and this is gross domestic product at market price। so this is net and this is gross। net equals to gross minus depreciation। this is factor cost and this is market price। we know that market price is equal to factor cost plus net indirect taxes। so from this equation we can
find the value of factor cost, which will be market price minus net indirect taxes. Okay, so factor cost equal to market price minus net indirect taxes. और इसी इक्वेशन को आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे, that deduct depreciation and net indirect taxes from GDP at MP to obtain the domestic income which is NDP at FC. तो आपको depreciation और net indirect taxes को deduct करना है किससे? GDP at MP से, in order to obtain the domestic income. Clear? This is step 4. And now the last step, which is step 5, that when we have calculated domestic income, so what we will do, we will add NFIA to domestic income in order to obtain national income. This is net national product at factor cost. So this is national, and this is net domestic product at factor cost. So this is domestic. National equal to domestic plus NFIA. Okay, so we will write estimate and add NFIA to domestic income to obtain national income. तो ये थे आपके 5 steps of measuring national income in India using expenditure method. Simple. Now the last one, that is precautions. To avoid double counting, expenditure on all intermediate goods and services is excluded. For example, purchase of vegetables by a restaurant, expenses on electricity by a factory, etc. are not included as they are intermediate consumption. तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया गया है उसे हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं. हम सिर्फ और सिर्फ वी विल ओनली कंसिडर द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है दैट विल ओनली बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज पे कोई भी अगर एक्सपेंडिचर किया है दैट विल बी एक्सक्लूडेड. एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी रेस्टोरेंट ने मान लीजिए कोई डिश बनाई, ठीक है, वो जो डिश है वो उसने फाइनल जो अल्टीमेट कंज्यूमर को जितने में सेल की है दैट विल ओनली बी कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम. लेकिन उस डिश को बनाने के लिए अगर उसने कोई वेजिटेबल्स का यूज किया है, वेजिटेबल्स के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किया है, सो दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड, दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड एंड दैट वी विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम. आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर. ऐसे ही अगर फैक्ट्री ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर ने परचेज किया, सो अल्टीमेट कंज्यूमर ने जितना एक्सपेंडिचर किया दैट विल ओनली बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी उसने फैक्ट्री ने कॉस्ट बेयर करी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, सो दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड और सर्विस दैट वी विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम. ओके, as they are, so they are not included as they are intermediate consumption. Next, government expenditure on all transfer payments such as scholarships, unemployment allowance, old age pension, etc. is excluded because no productive service is rendered by the recipients in exchange. अब इस पॉइंट को भी समझ लीजिए. ट्रांसफर पेमेंट्स, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं. देखिए, दो तरीके की पेमेंट्स होती हैं. मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार. दो तरीके की पेमेंट्स होती हैं. एक होती हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स, जिसे आप कह सकते हो वन साइडेड पेमेंट्स. और एक होती है बायलेटरल पेमेंट, या इसके लिए अगर मैं करेक्ट वर्ड लिखूं तो आप लिख सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन. दैट विल बी more appropriate.
अब कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? कंसेप्ट ये है, पहले समझते हैं बायलेटरल। बायलेटरल में कि मैंने आपको कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड किए, बदले में आपने मुझे पैसे दिए। ये हुआ टू साइडेड, कि मैंने आपको कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड किया, बदले में आपने मुझे उसके बदले में पैसे दिए। दिस इज टू साइडेड। बट यूनिलेटरल इज ओनली वन साइडेड। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका में अगर कोई क्राइसिस आ गया, श्रीलंका में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इंडिया जो है वो श्रीलंका की मदद करता है, इंडिया जो है वो श्रीलंका की एज अ गुडविल जेस्चर मदद कर रहा है, क्या बदले में श्रीलंका ने कोई भी गुड या सर्विस प्रोवाइड किया इंडिया को? नहीं। क्या ऐसा है कि फ्यूचर में श्रीलंका जो है वो इंडिया को कुछ मतलब इसको रिटर्न करेगा कुछ? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंडिया तो एज अ गुडविल जेस्चर श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से श्रीलंका के पास पैसे गए, बदले में श्रीलंका ने कोई भी गुड या सर्विस इंडिया को प्रोवाइड नहीं किया है। दिस इज यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। तो ऐसी चीजें इसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट? एंड दैट वी विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तो ये जो यूनिलेटरल जो होता है, ये हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। अब जैसे स्कॉलरशिप्स हैं या कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है या फिर ओल्ड एज पेंशन है, तो गवर्नमेंट जब ये पेंशन प्रोवाइड कर रही है या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, जिसको भी प्रोवाइड कर रही है, क्या बदले में उस पर्सन ने कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड किया? नहीं। तो ये तो वन साइडेड एक्सपेंडिचर है ना सिर्फ। सो दैट वी विल exclude, that we will not include in the national income, because no productive service is rendered by the recipients in exchange। जिसको भी ये स्कॉलरशिप मिली है, जिसको भी ये पेंशन मिली है, उसने बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। And that is the reason government expenditure on all these transfer payments will not be included in national income. Next one, expenditure on purchase of second-hand goods is excluded from national income because this type of expenditure is not on currently produced goods। बात सही है। अगर किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज पे कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों? जिस पर्टिकुलर ईयर में वो एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ था, ओरिजिनली प्रोड्यूस हुआ था, उस ईयर की नेशनल इनकम में वो ऑलरेडी एक बार काउंट हो गया है, दोबारा से उसे हम काउंट नहीं करेंगे। आई होप क्लियर कि अगर कोई भी गुड है, अगर वो 2000 लेट सपोज 13 में वो प्रोड्यूस हुआ, तो वो 2013 की नेशनल इनकम में ऑलरेडी काउंट हो गया है। अब अगर 2014 में उसका दोबारा से सेल या परचेस हो रहा है, तो वो बन गया सेकेंड हैंड गुड, राइट? फिर वो क्या है? सेकेंड हैंड गुड। बट अब उसे हम दोबारा से इंक्लूड, मतलब उसे हम 2014 की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी जिस ईयर में प्रोड्यूस हुआ था, उस ईयर की नेशनल इनकम में 2013 की नेशनल इनकम में वो ऑलरेडी एक बार काउंट हो गया है। तो दोबारा अगर उसका कोई सेल या परचेज हो रहा है एज अ सेकेंड हैंड गुड, दैट वी विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। क्लियर? नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे शायद रह गया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट इस सेकेंड हैंड गुड की सेल या परचेज में अगर कोई भी कमीशन या कोई ब्रोकरेज दी गई है, दैट वी विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द करंट ईयर। अगर मान लीजिए 2014 में ये सेकेंड हैंड गुड का कोई सेल या परचेज हुआ और उस सेल या परचेज में कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज दी, सो दैट वी विल काउंट इन नेशनल इनकम, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ 2014। Okay, next one. Expenditure on purchase of shares, bonds, etc. is excluded because it is not payment for goods or service currently produced। Again, अगर कोई भी expenditure हो रहा है shares, bonds इस तरीके के ऊपर, तो इसे हम include नहीं करते national income में, because it is just a financial transaction। It is just a financial transaction। इसमें कोई भी good या service produce नहीं हुआ है, and that is the reason we will not include in national income। Next one, imputed expenditure on account output, example owner occupying his house or self consumed output by a farmer should be included। ये भी एक पॉइंट है कि imputed expenditure on account output, फॉर एग्जाम्पल ओनर ऑक्यूपाइंग हिज हाउस। ओनर ऑक्यूपाइंग हिज हाउस का मतलब कि अगर मेरा कि अगर मेरा अपना एक घर है, मैंने उस घर को कोचिंग सेंटर बना लिया। अगर मेरा अपना एक घर है, मैंने उस घर को कोचिंग सेंटर बना लिया,
एक्चुअल में क्या मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो तो मेरा अपना घर है। लेकिन अगर यही स्पेस मैंने कहीं बाहर परचेज करी होती, तब तो मैं रेंट पे करता, राइट? तो जितना मैं रेंट पे करता, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, दैट विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल समझो, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट बाय अ फार्मर। फार्मर ने कोई आउटपुट प्रोड्यूस किया, लेकिन उसने वो खुद ही कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया। लेकिन अगर वो सेल्फ कंज्यूम ना करके मार्केट में सेल करता, तो जितने का भी वो सेल होता, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, तो ये आज हमने एक्सपेंडिचर मेथड कवर अप कर लिया विद इट्स मीनिंग, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। थैंक यू।